রাজগীর শহরটা থেকে বেরিয়ে আমরা এখন বরাবর কেভের দিকে যাচ্ছি। বরাবর কেভ হচ্ছে ভারতের সবথেকে প্রাচীন এক গুহা, মানে মনুষ্য সৃষ্ট প্রাচীন গুহা। মানুষ ওই গুহাটা নিজেরাই তৈরি করেছিল, ওটা কোনো প্রাকৃতিক গুহা নয়। পাথর কেটে মৌর্য যুগে ওটা বানানো হয়েছিল, সম্রাট অশোক বানিয়েছিলেন। তো এই যে জায়গাটা যে কারণে আমি দাঁড়ালাম, এখান থেকে এই পুরো রাজগীর পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে। রাজগীর পাহাড়। গুহাবাসী মানুষের বাড়ি বানাতে শেখার পরেও গুহার প্রতি টান কমেনি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই কৃত্রিমভাবে গুহা নির্মাণের নানা নিদর্শন পাওয়া যায়। আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশে বিহারের জেহানাবাদ এমন একটা জায়গা যেখানে রয়েছে সবথেকে প্রাচীন এই ধরনের নিদর্শন। এই গুহাগুলি মৌর্য যুগে নির্মিত। কিছু গুহা সম্রাট অশোকের আমলে এবং কিছু গুহা দশরথ মৌর্যের আমলে নির্মিত হয়েছে। এই গুহাগুলির কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কীরকম বৈশিষ্ট্য? না, সমস্ত গুহায় হারিয়ে যাওয়া আজীবক সম্প্রদায়ের জন্য নির্মিত হয়েছিল। ফেমাস মৌর্যন পালিশ দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার যে গুহাগুলি একটিমাত্র পাথরকে কেটে বানানো, অর্থাৎ মনোলিথিক। বরাবর এবং নাগার্জুনি দুটি পাহাড়ে 4টি এবং 3টি করে গুহা রয়েছে, যার মধ্যে আজকে আমরা দেখব 3টি গুহা। এই রকম কিছু পালি ভাষায় লেখ থেকে জানা যায় কোনটি কোন রাজার আমলে নির্মিত। এখন আপনারা যে স্টেপগুলি দেখছেন এগুলিকে বলা হয় অশোকান স্টেপ। এবং এই যে চৈত্যটি আপনারা দেখছেন, আজকের ভারতের সবথেকে পুরনো চৈত্য এটি। ওইখানে রয়েছে বরাবর গুহা, নাগার্জুনি গুহা। আমরা প্রায় চলে এসেছি, কিন্তু যা বৃষ্টি পড়ছে তাতে কতটুকু কি যে দেখতে পাবো জানি না। যেখানেই যাই শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি। দূর থেকে যখন আমরা পাহাড়টা দেখছিলাম, আমাদের মনে হচ্ছিল জুরাসিক যুগে ঢুকছি আমরা। আমাদের কৌতূহল মেটাতে এবং ইতিহাস আর ভূতত্ত্ববিদ্যা দুটোই খুঁজে বার করতে সাহায্য করেছিলেন গাইড রাকেশ প্রসাদজি। চলুন একসাথে দেখি। एविडेंस दे रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं अशोका इंस्टेंट वे की तरफ, चलिए। गोइंग डाउन द कार पार्किंग। थोड़ा स्लिपरी रहेगा, एडवेंचर रहेगा, ঠিক আছে, और চলিए। बी केयरफुल। আমরা এখন বরাবর গুফাতে চলেছি। আমার সঙ্গে আছেন এখানকার গাইড রাকেশ প্রসাদজি। রাকেশ প্রসাদজির সাথে আমরা বরাবর, এরপরে নাগার্জুনি গুফাতে যাব। উনি যেরকম বললেন যে এই যে যারা যাচ্ছেন এনারা শিব মন্দিরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন, আরও খানিকটা ওপরে গুফা থেকে শিব মন্দির, ওনারা শিব মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছেন। আর আমরা তার আগেই গুফাতে যাব। গুফাতে পৌঁছতে একটু হালকা করে ট্রেক করার মতো ব্যাপার রয়েছে, গাছপালা এড়িয়ে চলতে হবে, বৃষ্টিটাও পড়ছে। চলুন কি কি দেখতে পাওয়া যায় দেখি। তো এখন রাকেশ প্রসাদজি আমাদের এই পাহাড়ের जियोलॉजिकल दिखता बोलबेन। राकेश जी, ये पहाड़ कैसे बना हुआ है? सर एक्चुअल GSI रिपोर्ट से है, जो इसका साइंटिस्ट हो गया रीम्फा सर, साइंटिस्ट 6 महीना रिसर्च चला इसका। इससे उन्होंने हमें बताया, ऐसे ऑफिशियल जो है चला जाता है, लेकिन हम बोले सर हमारे पास बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर टूरिस्ट, लेकिन वो पूछते हैं कि ऐसे पहाड़ गोल गोल क्यों है। एक्चुअल क्या है ये कि ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रेनाइट रॉक है ये, और ये ग्रे ग्रेनाइट है ये ग्रे ग्रेनाइट है, और ग्रे ग्रेनाइट है ये, लेकिन ये खास करके ये बोल्डर है आपका। ये अग्नीय चट्टान है, लेकिन लावा नहीं है। लावा नहीं होने का कारण है कि GIC रिपोर्ट में कहा जाता है कि दुनिया का जो पहला माउंटेन है वो एरावली है। अरावली, द फर्स्ट माउंटेन राजस्थान, एरावली राजस्थान का बहुत बड़ा रेंज है सर। और सेकंड माउंटेन जो है आपका बड़ावर हिल है ये। अच्छा। जो आप देख रहे हैं GIC रिपोर्ट में इसका जो एज हो रहा है 1100 मिलियन ईयर ओल्ड। ये ग्रेनाइट है लेकिन लावा नहीं है। साइंटिस्टों का कहना है कि इसका जो डेप्थ था 20 किलोमीटर। अच्छा। मैग्मा जो अंदर पिघल कर अंदर में ही ड्राई हो रहा था, सरफेस पे आके बहा नहीं। अगर सरफेस पे आके बहता तब इसे हम लावा कहते हैं। तो अगर अंदर में एक मैग्मा पिघला, दूसरा सूखा, फिर बना, फिर सूखला, लेकिन पृथ्वी में ज़्यादा जंप चल रही थी, उथल पुथल हो रहे थे, इसलिए धक्का लग लग के धीरे धीरे करके ये ऊपर आ गया ये। इसलिए आप राउंड राउंड देख रहे हैं, गोलाकार देख रहे हैं। खासियत इसके साथ एक और है सर, जो आपको हम दिखाएंगे।
इसके साथ आया है आयरन ओर। जो आयरन ओर आया है इसमें 70% आयरन है, एक्चुअल तो हेमोटाइट है वो, जिससे अशोक सम्राट से रिलीजन आता है। अशोक सम्राट जिससे वो चीजेल और वेपन का यूज किया, क्योंकि जो गुफाएं हैं जो हम लोग देखने जा रहे हैं, आर्कोलॉजिस्ट अनुसार, हम विकीपीडिया वगैरह के नहीं बोलेंगे क्योंकि वो उतना ऑथेंटिक होता नहीं है। जैसे डॉक्टर मंजूर सर हो गए, सुष्मिता वासु मजुमदार, आर्कोलॉजिस्ट कोलकाता, हमने दूसरे स्टडी की है। तो ये खास करके ये जो गुफाएं हैं ये दुनिया का पहला मानव निर्मित है, वर्ल्ड फर्स्ट मैन मेड रॉकेट कैप बिल्ड बाय अशोका, एक्चुअली 252 बीसी। और ये 252 बीसी का ये जो गुफाएं बनी हुई है ये आजीवक संप्रदाय के लिए है, ये बौद्धों के लिए नहीं है। तो हम ये सीढ़ियों से चलते हैं, फिर आजीवक संप्रदाय के बारे में आपको बताते हैं कि क्या है। ये नई रास्ता है 1996 का, जो आप देख रहे हैं सीमेंट की बनी हुई है। ये 71 स्टेप है, और इसका जैसे बिहाइंड जाएंगे हम, इसका बिहाइंड जाएंगे हम तो 252 बीसी जो रॉक कट फुट स्टेप्स है, जिसे अशोका स्टेप्स के नाम से जाना जाता है वो। तो उधर भी एक गुफा है जो हम आपको दिखाएंगे। যেটা উনি বললেন যে এই রাস্তা নতুন রাস্তা 1976 সালে তৈরি, 76টা স্টেপ 1996 96 তৈরি, 76টা স্টেপ রয়েছে। তারপরে শুরু হচ্ছে সেই অশোকের আমলে নির্মিত পাথর খোদাই করে করা সিঁড়ি। এটা শেষ হলে ওই সিঁড়ি শুরু হবে। ये नेचुरल वाटर है, पहाड़ों का पानी है। আচ্ছা, ঝর্ণার জল। বরাবরে যে 4টি গুহা আছে তার মধ্যে সিঁড়ি দিয়ে উঠলে প্রথমেই চোখে পড়বে করণ চৌপর গুহা। আজীবকদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। অশোকের পিতা বিন্দুসার, সম্রাট বিন্দুসার ছিলেন আজীবকদের সাপোর্টার। তো এই হচ্ছে সেই করণ চৌপর গুহা, অশোকের দ্বারা নির্মিত। এই গুহার বাইরে কিছু মূর্তি খোদাই করা আছে, শুনে নেব আমরা যে এগুলো কিসের মূর্তি ছিল। এই বরাবর পাহাড়ে টোটাল 4টে গুহা রয়েছে, যার মধ্যে এই করণ চৌপর গুহা, সুদামা গুহা, লোমস ঋষি গুহা আমরা আজকে দেখব। পরের পর্বে আমরা দেখব বিশ্বকর্মা গুহা। আসুন রাকেশ প্রসাদজির কাছ থেকে পুরো জায়গাটার ইতিহাস এবং দর্শন কী ছিল সেটাও জেনে নিই। हम इसको शुरू करते हैं सर। हाँ बोलिए। समय देना होगा सर आपको। खास करके ये जो गुफाएं देख रहे हैं आप, जो मोनोलिथिक है ये, और अशोक सम्राट इसे बनवा के दिया है। अच्छा एक मिनट, मोनोलिथिक मतलब एक स्टोन को ही काट करके बनाना हो, सिंगल हाँ, रॉक। हाँ। आप इसे बोल्डर हाउसिंग कर सकते हैं। जीआईसी ये बड़ा सा बोल्डर जैसा। बिल्कुल सर, बोल्डर हाउसिंग। जीआईसी लोग ऐसे लिखते हैं, बोल्डर हाउसिंग। ये मोनोलिथिक ही तो है सर, खासियत ये है। हम शुरू करें सर। देख रहे हैं ये गुफा, खास करके ये गुफा जो देख रहे हैं, ये अशोक सम्राट ने आजीवक संप्रदाय को दान में दिए हैं, आजीवक को दान में दिए। आखिर आजीवक हैं कौन? हम आजीवक को जानने के लिए हम 6th सेंचुरी बीसी चलते हैं। 6th सेंचुरी बीसी महावीर, सारी पुत्रा मखली घोषाल। मखली घोषाल का जन्म राजगिरी में होता है, क्योंकि ये गुफा जो है आजीवक के लिए, तो आजीवक का जो मेन फाउंडर है उनका जानना जरूरी है कि आखिर हैं कौन वो। तो राजगिरी में इनका जन्म एक गौशाला में होता है, जिसका इनका नाम है मखली घोषाल। मखली घोषाल द मेन फाउंडर द आजीविका। तो महावीर और मखली घोषाल दोनों अच्छे फ्रेंड हैं, और दोनों का एक साथ उठना बैठना एक साथ होता था। लेकिन मान सम्मान की जहाँ तक संभावना होगी, जब मान सम्मान जहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा मान सम्मान मिलता था आपको महावीर को, और इनको थोड़ा कम मिलता था। मैंने कहीं भी गए, मैं कम मिलने का कारण क्या था कि जैसे कहीं अचानक पहुँचे तो खाट बिछाने में उस तरह का थोड़ी कुर्सियां वगैरह हुआ करता, खाट बिछा दिए। कुर्सियों में महावीर जी को बैठाया और आजीवक को नहीं, उस समय आजीवक नहीं हुए थे, अभी उस समय आजीवक। বহু ধর্ম এবং দর্শনের দেশ ভারতবর্ষে এক হারিয়ে যাওয়া দর্শন হলো আজীবক দর্শন। নাস্তিকবাদ, নিয়তিবাদ এবং কর্মযোগে বিশ্বাসী ছিলেন এনারা। অনেকটাই বাস্তববাদী ছিল এদের চিন্তাধারা।
পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন। মহাকালী গোশালা এই ধর্মমতের প্রবক্তা, যদিও একে দর্শন বলাই যুক্তিযুক্ত। কালের নিয়মে এটি হারিয়ে যায়, কিন্তু ছিটে ফোঁটা কিছু জানা যায় এর সম্পর্কে। कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा। इतना दिखाई पड़ेगा सर, इससे ज़्यादा पड़ेगा दूसरी गुफा में। अच्छा। तो अब देखेंगे ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और लैंग्वेज प्राकृत है। हमने इसका अध्ययन किया है क्या लिखी हुई है, फिर उसके बाद हम ट्रांसलेट कर देंगे। अच्छा। मैंने इसका अध्ययन किया है कि क्या लिखी हुई है। तो ये लेफ्ट से राइट जाता है, और ऐसे भी एशिया और इंडिया का जो लेफ्ट से राइट में गुफा में 5 लाइन लिखी हुई है। देखिए इसमें लिखी हुई क्या है, देखिए हम आगे ऊपर जाते हैं, इसमें लिखे क्या है। लेजिना, हम प्राकृत बोल रहे हैं सर। लेजिना पिए दसिना, लेजिना मतलब होता है किंग। पिया दसिना सनाटा सबको, पियादर्शी नहीं बोलेंगे तो हिंदी वर्ड है ये। लेजिना पिए दसिना इकनवी, यानी 19वीं वर्षगांठ का मेंशन है। इकनवी सातुबा सतेना जलूठा गमीठा तब यम खूबा सुपियक्षा दिन्ना अजीविका, ये 5 लाइन में लिखी हुई सर। इसका हिंदी हम बता देते हैं। राजा अशोक सम्राट के शासन काल के 19वीं वर्षगांठ में वर्ष का उपलक्ष्य में सुपियक्षा नाम की गुफा आजीवक को दान दी जाती है। आर्कोलॉजिस्ट का अनुसार हो गया 245 BC, जो दुनिया का पहला मानव निर्मित है सर। इसका बिहाइंड है जो 12th रीजनल ईयर द डॉन था आजीविका, वो 12वें वर्षगांठ में दान में दिए थे। जो पीछे है 252 BC, जो आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं दुनिया का पहला मानव निर्मित। हम विकिपीडिया में नहीं जाएंगे सर, क्योंकि आर्कोलॉजिस्ट में जाएंगे हम। तो हम चल रहे हैं फिर आजीवक पे। तो इस तरह का 7000 आजीवक उस समय फैल गए थे, लेकिन नियतिवादी हार्ट मेडिटेशन के कारण उसका फ्लोवर नहीं रहा। 1000 ईयर 6th सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी AD तक यहाँ आजीवक रहे। वो कन्वर्ट होकर बौद्धिज्म में चले गए, तीर्थंकर में चले गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये आजीवक को जो है दान में दिए, तो आखिर अशोक सम्राट ने क्यों दान में दिया, ये प्रश्न उठता है सर। तो थोड़ा सा बिंदुसार चाहते थे चाहते थे बिंदुसार, हम तो बता रहे बिंदुसार चाहते थे, लेकिन डॉक्टर को कैसे बोलेगा। तो इसके लिए हम 3rd सेंचुरी BC जाते हैं। लेकिन देखते हैं कि बेचैनी तो छाई हुई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा हत्या हो गई थी ना। तो बहुत सारे मॉन्क से इन्होंने पूछा कि सिद्धार्थ का मेंशन होता है कि उन्होंने क्या क्या किया था। तो एक वरिष्ठ मॉन्क ने बताया कि उन्होंने 84,000 प्रवचन दिए थे। इन्होंने 84,000 स्तूपा और पिलर बनवाने का निर्माण कर दिया, जो आप देखेंगे पूरे गंधार उन्धार सब बनी हुई है सर। जब लीन हो गए उसमें, तब इनका पिता बिंदुसार और माता सुरदांगी को चिंता होना शुरू हो गया कि ये इतने बड़े शासक जो है धर्म को एक्सेप्ट कर लिया, बुद्धिज्म में चला गया, तो हमारा तो कुछ चलेगा नहीं। अब हम करेंगे कि तो क्या करेंगे हम। तब इन्होंने क्या करता है कि सीधे पार्टीग्राफ से चले जाते हैं महाबोधि ट्री, और आने के बाद ये क्या करते हैं कि उनसे कहते हैं, सैनिक को बोलते हैं कि देखो जाकर अशोक से मिलाओ हमें। जब अशोक सम्राट जब मिलते हैं उनसे, तो बोलते हैं कि ठीक है आप धर्म को एक्सेप्ट कर लिए हैं, बुद्धिज्म में चले गए हैं, तो हम ही तो किसी को मानते हैं, आप हमारे लिए तो कुछ बनवा के दीजिए। क्योंकि अशोक सम्राट के जो पिता बिंदुसार थे, माता सुरदांगी थी जो आजीवक का फॉलोअर थे। तब ये गुफा का निर्माण होता है। इसका जो बिहाइंड है, जिसका नाम है निगरोधा, तो वो निगरोधा जो गुफा है वो बनाकर वो आजीवक को दान देते हैं, तो उसमें मेंशन कर देते हैं। जिसका हम पीछे बिहाइंड जाएंगे तो उसको पढ़ के बताएंगे। तो ये सारे गुफाएं जो 4 गुफा का निर्माण के, जो वो अपना रीजनल ईयर में, ऐसा नहीं कि हम 3rd सेंचुरी BC कह देंगे तो काम चल जाएगा। 3rd सेंचुरी BC में तो अशोक है, लेकिन इनका जितने भी है इनका स्तंभ लेख है, और कहीं पे शिला लेख मिलता है। तो रीजनल ईयर यानी वर्षगांठ का बहुत ज्यादा मेंशन किए हैं वो। अच्छा। तो इस तरह करके उन्होंने सब 4 गुफा का निर्माण कर आजीवक को ही दान में दिए हैं। तो पहले हम गुफा देखते हैं, फिर आजीवक की तरफ चलते हैं सर। तो ये इसका तो बोल दिया सर कि ये जो है आपका नया नाम हो गया कर्ण चौपार। पहला क्या नाम था? सुपेक्षा दिन्ना आजीविका, जो मेंशन इसमें लिखा है सुपेक्षा दिन्ना आजीविका ही। और ये 245 BC ऑथेंटिक आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट। ये भी मोनोलिथिक है, मौर्यन पॉलिश है, अशोका टाइम पॉलिश है, लुक लाइक द ग्लासेस। मौर्यन एरा का एक खासियत है। और इसका खास करके देखिए सर, आज 2350 वर्ष में 2500 मान लीजिए, तो इसका पॉलिश अभी तक गई नहीं है सर। लुक लाइक द ग्लासेस।
तो हम दिखाएंगे, स्मूथ रहेगा, ये रहेगा। और ये आर्क शेप में बना हुआ है, आर्क शेप में है ये। और स्क्वायर फीट कहने का मतलब है कि कहीं भी जो है एक सूत में बनी हुई है। होता है ना कि ये ग्रेनाइट रॉक, वेरी हार्ड रॉक, और कहीं पर इसको बनाया है तो उबड़ खाबड़ रहेगा, कहीं पर गड्ढे रहेगा, ऐसा नहीं है, ये स्मूथ है। ये मेडिटेशन चैम्बर है जहाँ बैठकर लोग मेडिटेशन करते थे। तो चलते हैं हम लोग अंदर। हाँ चलिए। ये सब लिपि क्या पुराना लिपि है? हाँ, ये जो लिपि है तो देवनागरी लगता है। देवनागरी छोड़कर हाँ ये है गुप्ता पीरियड का जो चेंज हुआ है। हाँ हाँ तो इसका जिक्र हम करेंगे दूसरी गुफा में, जो क्या लिखे हुए हैं और बता दें कैसे चेंज हुआ है। चलिए। দেয়ালে প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছেন? আরও ভালো করে দেখাবো। এটাই হলো ফেমাস মৌর্যন পলিশ, অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পালিশ করা। यहाँ पर देखिए, मैम आप भी देख लीजिए, ये स्मूथ है, ये इसको छू कर देखिएगा, ये स्मूथ है। हाँ मार्बल जैसा है एकदम एक ग्रेनाइट है, लुक लाइक मोजाइक, बट नॉट मोजाइक सर। तो स्मूथ है, ये पूरा स्मूथ है। और ये देखेंगे 6 फीट 3 इंच है। ये बॉर्डर है, यहाँ पर देखेंगे बॉर्डर है, आप देख रहे हैं सर। और यहाँ से ये आर्क सेट में जाता है, देख रहे हैं सर। हाँ बॉर्डर है। फिर ये मेडिटेशन के लिए प्लेटफॉर्म हो गया, मेडिटेशन के लिए। यहाँ पर कोई मूर्ति वगैरह था क्या? मूर्ति नहीं सर, उसमें मूर्ति नहीं होती थी ना। अच्छा इसको तो ऋषभवान है सर। नहीं ऋषभवान है। हाँ तो अब तो बहुत लोग आते हैं, अब पूजा पाठ मेडिटेशन करते हैं यहाँ पे। कैंडल देख रहे हैं सर, कैंडल जली हुई है। इसका जो हाइट है 9 फीट है। अच्छा हाँ 6 फीट और 3 फीट ही होगा। 9 फीट हाइट 9 फीट है, 33 फीट है। इसका लंबाई थोड़ा सा बना दिया और चौड़ाई आपका 16 फीट है। अच्छा हमने कहा है लुक लाइक द ग्लासेस। आगे इसके चलो जो देखने आ रही है उसका आप यहाँ बनाना है। यहाँ मैम आप यहाँ पर ओके ओके सर, मूव कीजिए। हाथটা দেওয়ালে টাকা अगर हाथ को जोड़ते हैं तो एक जुड़वा हो जाता है। और ये मॉरियन पॉलिश, सोकाटाइप पॉलिश। हाँ हो गया। ये जो स्क्रिप्ट देख रहे हैं इसे कहा जाता है शंख स्क्रिप्ट। शंख ये तो पाठांतर नहीं हुआ। हाँ, लेकिन सर ये जो पढ़ा नहीं गया है, डिसाइफर नहीं हो पाया है। हाँ तो ये ज़्यादा पुराना नहीं है। ये 10वीं शताब्दी का है, ये 10th सेंचुरी का। कोड लैंग्वेज जैसा है। नहीं, शंख स्क्रिप्ट जिसको हाँ शंख स्क्रिप्ट, जिसे आर्कनोलॉजी से बोलते हैं सेल स्क्रिप्ट। শাঁখের মধ্যে দেখতে हाँ बिल्कुल मैम, शंख जैसा ही है, लेकिन इसे कहा जाता है सेल स्क्रिप्ट। आर्कनोलॉजी बोलते हैं कि डिसाइफर नहीं हो पाया है, बाकी से लोग पढ़े गए हैं। तो हम लोग चलते हैं सर दूसरी गुफा में। পিস পিস আছে। गुफा की तरफ जाएंगे। इसके बाद कौन सा वाला गुफा है? सुदामा। सुदामा गुफा में मंडप है, वो क्या अभी भी है? हाँ बिल्कुल, अच्छा डोम शेप में है ना। हाँ तो अंदर सुदामा गुफा क्या नौ सौ अशोका के टाइम में बना हुआ है या फिर बाद में? नहीं सर, अशोका का है, उसी को तो बता रहे थे सर आपको। उसका अच्छा। नाम निग्रोधा है, अच्छा वही निग्रोधा है। उसी का नाम को सुदामा कर दिया है। अच्छा ये गुप्त युग में हुआ ना सुदामा नाम? हाँ, जिससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ यहाँ ही सभी गुफाएं है। 3 गुफा यहाँ है, 3 गुफा यहाँ पर है। चौथी गुफा अलग से रास्ता है अच्छा सर, अशोक का रास्ता से। আচ্ছা এইখানে হচ্ছে 3টে গুফা রয়েছে আর অশোক পথ বলে আরেকটা জায়গা দিয়ে শেষের গুফাটা রয়েছে বরাবর কেভে। আর যদি আমরা নাগার্জুনী গুফাগুলো বলি তাহলে সেগুলো আরেকটু দূরে আলাদা জায়গায়। सर थोड़ा सा दिखाइए यहाँ।
এইটা পুরোটা একটা কুমিরের মতো শেপ। এখানে দুটো গুহা রয়েছে, ওই সুদামা গুহা প্রথমটা এবং শেষেরটা যেটাতে চৈত্যটা রয়েছে সেটা হচ্ছে লোমস ঋষি গুহা, মহাভারতের যে লোমস ঋষি তার নামে, যদিও এগুলোর নাম আলাদা ছিল। करके बोलिए ना। एक्चुअल देखिए सर, हाँ। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये लुक लाइक द क्रोकोडाइल शेप में है ये। हाँ हाँ। और एक मूवी बनी थी, हम्म। ये पासेज टू इंडिया। हाँ, ये पैसे एक बुक भी है, हाँ, नोवेल है एक, ये ई में फर्स्ट उसमें तो मारा मार केप बोला, बिल्कुल। बराबर को मारा मार बना दिया। ऑफिशियल हो जाता है ना। हाँ। तो एक्चुअल क्या है, जितनी हमारे पास ये टूरिस्ट आते हैं यूरोपियन कंट्री का, तो नोवेल पढ़ के आते हैं हाँ। या मूवी देख के आते हैं पासेज टू इंडिया। जो हमारे एक एक्टर हमारे इंडिया के हैं, विक्टर बनर्जी, डॉक्टर अजीज का रोल में है। तो 3 ऑस्कर विनर है और शूटिंग कुछ यहाँ हुई है, बाकी बंगलौर में हुई है हाथी द्वारा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि लुक लाइक क्रोकोडाइल शेप में है ये। तो इको पर है, मलावर हिल का नाम से जाना जाता है उसमें। तो वो क्या है, वो वाला? वो न्यू स्टेज है वो। अच्छा, न्यू मतलब कितना पुराना है? 96। अच्छा, बिफोर क्राइसिस सर न्यू गोइंग बोलना पड़ता है, क्योंकि ये 20 साल 22 साल कोई मायने नहीं रखता है। वो क्या अलग गुफा है? हाँ, वो अलग है, अच्छा वो अलग है सर। अच्छा। तो ये गुफा आर्कोलॉजिकल का रिपोर्ट से ये गुफा है जो दुनिया का पहला मानव निर्मित है, 252 BC। अब यहाँ देखेंगे लिखा हुआ ब्राह्मीज क्लिफ में है ये। हम इसे अध्ययन किए हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पर ये ल है, ये ल, अच्छा। ये मात्रा आकर तो ला हो गया, ये ज है, ये हर्षी का तो जी हो गया, ये न है, यही मात्रा से यहाँ चला गया लेजिना। लेजिना मतलब राजा या किंग। ये प है, हर्षी का पी हो गया, य है, द है, स है, हर्षी का सी हो गया ना, पी य द सीना, अशोक सम्राट का नाम मेंशन है, प्रियदर्शीना। और ये है डूहा। डूहा का मतलब 12 वर्ष का मेंशन, डूहा। दसना भिनासी, सितम यम खुबा, निगरोधा, दिन्ना अजीविका। हमने निगरोधा का जिक्र किया था, जो सुसिम का बेटा था, जो सावनारायण मौंग था। तो ये अशोक सम्राट अपने शासनकाल के 12वें वर्षगांठ में वर्ष का उपलक्ष्य में निगरोधा नाम की गुफा आजीवक को दान में जाती है। तो आर्कोलॉजिकल का रिपोर्ट हो गया 252 BC, ये दुनिया का पहला मानव निर्मित है। तो हम इस गुफा के अंदर चलते हैं। एक हट डिज़ाइन है, मेडिटेशन चैम्बर है। तो अंदर चलते हैं, और उसमें अच्छा जो है एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इसमें जो देखने का। आइए। इधर कुछ था लगता है। अच्छा, हाँ, वो आजीवक का तो मूर्ति नहीं था। ये गेट बनाई गया है अच्छा, उस गुफा के लिए, लेकिन गुफा का गेट अलग से बन गया है। आप देखेंगे ये देखेंगे हट डिजाइन, देख रहे हैं हट डिजाइन है, मेडिटेशन चैम्बर। और अंदर जाकर हम कुछ बोलते हैं, आपका कैसा फील होता है आप देखिए, रिकॉर्ड करके 3 मिनट सर, तो सर रुके 3 मिनट। मेडिटेशन चैम्बर। ये सर्कल हो गया, ये सर्कल ले रहे हैं 90 फीट हाइट में। जो चीफ होते थे यहाँ पर बैठा है, बहुत बढ़िया इको। ओ
এই গুহার ভেতরে মেডিটেশন হতো, যেরকম দেখলেন কুমিরের শেপ এই গুহার, এই দিক থেকে শুরু করে এই দিক অবধি, যেটাকে বলা হচ্ছে সুদামা কেভ। নাম পরিবর্তন হয়েছিল পরে। এই যে ধ্বংসস্তূপগুলো রয়েছে, এই ধ্বংসস্তূপগুলোতে মানে যখন এগুলো ঠিক ছিল, এগুলো কক্ষ ছিল, যার মধ্যে যারা এখানে আজীবক মুনিরা থাকতেন, তাদের যারা শিষ্য তারা সব থাকতেন। লোমস ঋষি গুহা। আর তার উল্টো দিকে একটা স্টেজ, এটা নতুন করেই বানানো, কোনো অনুষ্ঠান হয়েছিল বা কিছু হবে সেটা শুনে নিতে হবে কেন স্টেজটা বানানো। এরকম কিছু বসার জায়গা রয়েছে। আজকে তো বৃষ্টি, না হলে হয়তো একটুক্ষণ বসা যেত। এই যে লোমস ঋষি গুহা, অনেকে মনে করেন এটা মৌর্য যুগের থেকেও প্রাচীন। এই যে চৈত্যটা দেখছেন, এটা হচ্ছে প্রথম চৈত্য। এরপর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন চৈত্যের ব্যবহার রয়েছে এবং তার বিবর্তনও হয়েছে। সামনের একটা ছবিতে দেখুন, বিবর্তনগুলি দেখতে পাবেন, একটু পজ করে দেখবেন। প্রথম চৈত্য লোমস ঋষি গুহায়। সম্ভবত কোনো ভূমিকম্প আসার কারণে এই গুহাটি সম্পূর্ণ করা হয়নি। এখানে আপনারা পলিশড দেখতে পাবেন না, শুধু কাটা হয়েছে গুহাটা, তার দাগ দেখতে পাবেন। এই যে চৈত্যটা আমরা দেখছি, এই চৈত্যটাতে হাতি রয়েছে। এই হাতি হচ্ছে আজীবকদের সিম্বল। পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো মনুষ্য নির্মিত গুহা, তার বাইরের চৈত্য এটি। एक्चुअल सर হুম ये जो वर्ल्ड फेमस जो गेट कार्विंग है, तो एक्चुअल आजीवक का भी एक सिंबल एलिफेंट रहा है, হুম बौद्धिज्म का तो है ही। হুম तो एक्चुअल क्या है, वर्ल्ड फेमस गेट कार्विंग द वुडन डिजाइन, ये लकड़ियों का डिजाइन है ये। हाँ तो वुडन डिजाइन गेट कार्विंग 241 BC, ये दुनिया का पहला गेट कार्विंग है सर ये। अब देखेंगे जो बीच में जो बोल रहे हैं, वो जो बीच में हाथी के बीच में जो है वो स्तूप है, वो अच्छा। महापरिनिर्वाण का संकेत करता है, क्योंकि अशोक ने बनवाया है इसे, तो नाम तो चेंज करेगा ना कुछ। तो वो स्तूप हो गया अशोक का। और बुद्ध का जो माँ थी महामाया, जो वर्स्ट टाइम ड्रीम देखी थी हाथियों का, ऐरावत हाथियों का, उसका कॉन्सेप्ट है आपका जो आप देख रहे हैं। और बाकी स्तूप है, उसमें जब बाउंड और कलसा में जो रखा जाता था बुद्ध का अस्थियां, जिसको निकाल निकाल लोग स्तूपा बनाते थे बुद्ध, ये अशोका, तो उसका एक बहुत बड़ा सिंबल है ये। और लास्ट में देखेंगे आप क्रोकोडाइल भी है इसका लास्ट में क्रोकोडाइल देखेंगे, मकरा। बुद्धिज्म में बहुत बड़ी चीज है कि ये एक समान रखना, धर्म के प्रति एक समान रखना, ये इसका बहुत बड़ा सिंबल है। वो हवा द्वार है, वो जो आजकल बहुत सारे प्राचीन बिल्डिंगों में मुगल काल में देखेंगे, ये देखेंगे। हाँ, इस तरह खिड़की था, लेकिन इसी का आर्क जो है वो चेंज हुआ, क्योंकि ये बिफोर क्राइस्ट का है ये। और ये इसका नाम है लोमस ऋषि की गुफा, और इनकम्प्लीट है ये, अंदर से इनकम्प्लीट है। चीजल रूफ लाइनिंग, चीजल कट मार्क्स, ओनली हैंडवर्क जो आप देख सकते हैं इसका अंदर में। जो आर्कोलॉजिस्ट करना का हो सकता है, क्योंकि रिपोर्ट नहीं है। आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये उस समय अर्थ की क्या होगा, जिससे क्रैक हो गया है, जो अंदर रखेंगे पानी सीपेज करता है, ये स्क्रिप्ट चेंज होता है सर। अच्छा, ये कौन सा स्क्रिप्ट है? ये मौखरी स्क्रिप्ट है, मौखरी। 7th century AD, ओनली स्क्रिप्ट बट मैट बिलस होता है। 7th century मतलब गुप्त युग का, गुप्त युग के बाद का। हाँ, मौखरी डायनेस्टी, मौखरी डायनेस्टी, मौखरी। अच्छा, मौखरी डायनेस्टी। अनंत बर्मन का नाम सुनेंगे सर। अच्छा। उनका फादर था सद्दुर बर्मन। उन्होंने यहाँ पर एक गांव बसाया था जिसका नाम है गौरथगिरी, जो मेंशन में है। तो ये हिंदुइज्म का प्रतीक है ये, इसमें हिंदुइज्म का प्रति बहुत ज़्यादा जोर दिए हैं, इसमें वही लिखा हुआ भी है। विष्णु के बारे में इसमें चर्चा की है। तो हम लोग अंदर चलते हैं सर।
ये इनके पेट है, यहाँ देखें ये बना है, एक क्रैक कर दिया था और पानी सीमेंट करना शुरू कर दिया, आधी सीमेंट बना, इसलिए सब थोड़ा काम कराना बंद कर दिया। इसलिए चिकन का प्लांट्स आते हैं और पुलिस को रिव्यू किया है, जब ज़्यादा पानी अंदर आना शुरू हो जाता है तो अशोक सर ने ड्रेन बनाया था, देख सकते हैं ड्रेन है। आज के डेट में से अशोक सर ड्रेन এই যে লোমস ঋষি গুহা যেটাকে বলছে, এটাকে বলা হচ্ছে লোমস ঋষি গুহা। বাইরে আমরা স্ক্রিপচার দেখলাম অনন্তদেব বর্মনের। এই গুহাটা তৈরি তো হয়েছিল অশোকের সময়ে, শুরু হয়েছিল। এই যে মার্কগুলো এখনও দেখা যাচ্ছে, যে কাঠ মার্কগুলো, গুহাটা বানানোর সময় যে মার্ক। তো গুহাটা বানাতে বানাতে যেটা হচ্ছিল যে জল ঢুকে যাচ্ছিল বৃষ্টির সময়, সেই জন্য কি করা হয়েছে না এরকম ড্রেনেজ সিস্টেম করা হয়েছে। গুহার দেয়াল থেকে জল বেয়ে আসবে, এইভাবে পুরোটা জুড়ে ড্রেনেজ সিস্টেম ঘিরে গিয়ে পুরো বাইরে বেরিয়ে যাবে। হয়তো আরও অন্য কিছু ছিল বা অন্য কোনো দিয়ে জলটা বের করার প্রণালী ছিল, তো এরকম ড্রেনেজ সিস্টেম রয়েছে। আর এই লোমস ঋষি গুহা, সুদামা গুহা দুটোতেই হচ্ছে 2 কক্ষ বিশিষ্ট। মানে এইখানে হচ্ছে সবাই বসবেন, মেডিটেট করবেন, আর এইখানে যিনি মেডিটেট করাবেন তিনি থাকবেন। এই যে এটা তো এত অন্ধকার যে দেখতে পাওয়া যাবে না, এর মেঝে বা ওপর দিক কোনোটাই হচ্ছে সম্পূর্ণ নয়, পলিশড নয়। মানে কার্ভিংগুলো শুরু হয়েছিল কিন্তু পলিশিংটা হয়নি। এটাই এর বিশেষত্ব লোমস ঋষি গুহার। আজকের এপিসোডে এই পর্যন্তই থাক। এর পরের এপিসোডে বরাবরের বাকি গুফা এবং তারপরের এপিসোডে নাগার্জুনী গুফা নিয়ে আসব। সঙ্গে থাকুন, সাবস্ক্রাইব করুন এবং কেমন লাগলো জানান কমেন্ট করে।